اگر آپ کینیڈا یا یو ایس میں رہتے ہیں، اپنے ینگ مسلم بچوں کی میرجز کے لیے پریشان ہیں، ایج 18 to 35 میکسیمم 40 ایک فی سبیل اللہ کمیونٹی بنائی گئی ہے۔ صرف اور صرف ہم کینیڈا اور یو ایس کی پروفائلز کو اپ کریں گے۔ اگر آپ وزٹ ویزے پہ ہیں کینیڈا یا یو ایس میں، ہم آپ کی پروفائلز کو اپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں، آپ ورک پرمٹ پہ ہیں، ہم آپ کی پروفائلز کو اپ کریں گے۔ پی آر ہیں، گرین کارڈ ہیں، سٹیزن ہیں تو ہی اپ کریں گے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اپنی پروفائل ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں، کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آج کا جی ہمارا ٹاپک another ویری سینسٹیو ٹاپک، کافی سارے سینئرز کے میسیجز آتے ہیں، کال آتے ہیں، اسپیشلی کینیڈا سے، ٹورانٹو سراؤنڈنگ سے، جنہوں نے پراپرٹیز بائی کی ہوئی ہیں اور ان کے پاس اب سیونگز نہیں ہے، لائف انشورنس لینا چاہتے ہیں، میڈیکل کنڈیشنز ہیں، کیا وہ لائف انشورنس لے سکتے ہیں؟ لائف انشورنس کے لیے کیا بیسٹ ایج ہوتی ہے، لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ کی پراپرٹی ہے اور آپ کے پاس انشورنس وغیرہ، لائف انشورنس وغیرہ نہیں اور کچھ ہوتا ہے تو ویڈیو پلیز واچ کریں، میکسیمم ٹو میکسیمم شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ لائف انشورنس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست یاسر خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں ریل اسٹیٹ میں ہوں۔ اٹس بین اے ویری ویری لانگ ٹائم۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، وہ بائنگ ہو، وہ ریزیڈینشیل ہو، وہ بزنس ہو، بزنس سنت ہے اور کوشش کریں کہ بزنس کی طرف آئیں، رسک لیں۔ رسک لیں گے، دنیا تو کبھی بھی آپ کو خوش ہونے نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، بزنس کے لیے لوگ آتے ہیں، پھر مشورے کرتے ہیں کن سے؟ جنہوں نے بزنس کبھی دنیا میں نہیں کیا، زندگی میں نہیں کیا۔ آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ کوئی قیامت تھوڑی آئے گی۔ رسک لینا سیکھیں، لیکن امیجن کریں اگر ان پیسوں سے آپ نے بزنس کیا اور اگر وہ بزنس سکسیسفل ہو گیا، اکانومی ادھر جا رہی ہے، ٹیرف ادھر لگ رہا ہے، وار ایسے چل رہی ہے، دنیا میں یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی اور جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا تو ابھی بھی چل رہا ہے، دنیا تو ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو کوئی بھی کنسرن ہے، کوشچن ہے ریگارڈنگ ریل اسٹیٹ، آپ نے صرف اور صرف مجھے کال کرنا ہے وداؤٹ اینی obligation and I will educate you, I will guide you properly۔ چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو از جسٹ فار ایجوکیشن پرپسز۔ سب سے پہلے ڈسکلیمر میں دے دوں آپ کو کہ لائف انشورنس حلال ہے حرام ہے، آئی ڈونٹ نو۔ آپ کسی بھی اسکالر کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیے، اس سے ڈسکس کر لیجئے۔ اس میں کنفلکٹ ہے اسکالرس کا، تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لے لیں کیونکہ یہ حرام ہے، اگین آئی ڈونٹ نو، مجھے دین کی اتنی نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں سیکھ رہا ہوں لیکن مجھے اتنی نالج نہیں ہے، تو اسکالر از دا بیسٹ آپشن۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ لائف انشورنس لینی چاہیے اگر آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسٹس ہیں اور آپ کے پاس سیونگز نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک گھر ہے، جس طرح مجھے کافی انکوائریز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ بھائی 4 لاکھ کی مورگیج رہ گئی ہے اور میں جو ہوں 68 کا ہوں، یا 2 لاکھ کی مورگیج رہ گئی ہے اور میں جی 71 کا ہوں، اور کیا مجھے لائف انشورنس مل جائے گی؟ تو اٹ آل ڈیپینڈس۔ میں نے لائسنس لیا ہوا ہے ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر تقریباً 10-12 سال سے، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا اور میرا لائسنس ابھی ویلڈ نہیں ہے۔ پروسیس میں اس کے لیے مجھے کچھ کنٹینیو ایجوکیشن کرنی ہے، تھوڑی سی رہتی ہے، آلموسٹ ہو چکی ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہوپ فلی، لیکن میرے پاس ویلڈ اس کی ایرر اینڈ امیشن کی انشورنس ویلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا وہ لائسنس ویری سون ول بی ایکٹیو، لیکن میں پریکٹس اس میں نہیں کرتا، میں فل ٹائم ریل اسٹیٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ لائف انشورنس فار ایگزامپل اگر آپ کا گھر ہے اور اس پہ مورگیج باقی ہے اور آپ کو کچھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بینک آپ کو اپنے پیسے ایک پیمنٹ بھی وہ نہیں کرے گا۔ یہاں پہ بینک کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی سمپتھی شو نہیں کرے گا کہ بھائی آپ کے خدا نخواستہ کسی پیارے کا انتقال ہو گیا تو آپ 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا ایکسٹینشن لے لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मॉर्गेज की पेमेंट ड्यू है 15th ऑफ एवरी मंथ, अब डिपेंड करता है कि आप कितनी पेमेंट्स करते हैं। कुछ लोग महीने में 2 पेमेंट्स करते हैं, बाई वीकली पेमेंट्स करते हैं, और कुछ लोग महीने की 1 पेमेंट करते हैं, कुछ लोग वीक की 4 पेमेंट्स करते हैं, डिपेंड कि आपने अपना स्केड्यूल कैसे बनाया हुआ है। तो हम सिंपल कैलकुलेशन पे चलते हैं और एक महीने में 1 पेमेंट हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एवरी 15th जो बिजनेस डे है हमारी बैंक की पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से निकलती है, और खुदा न खास्ता अगर आप वो पेमेंट मिस करते हैं तो यू विल रिसीव अ वेरी सून विद इन 15 डेज लेटर आएगा बैंक से। जब वो बैंक पेमेंट को कोशिश करता है और वो डिक्लाइन होती है तो बैंक 2-3 दिन के बाद दोबारा कोशिश करता है कि वो पैसे पुल किए जाएं, लेकिन अगर वो डिक्लाइन होते हैं तो बैंक आपको फर्स्ट लेटर 15-20 डेज प्लस माइनस में भेजता है। वो लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ हो गया, राइट, या अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया और आप इस वक्त अल्लाह ना करे हॉस्पिटलाइज हो गए या खुदा ना खास्ता डिसेबिलिटी पे चले गए और आपकी इनकम शॉर्ट टर्म के लिए रुक गई है, या कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, इन केस अगर आपका इंतकाल हो जाता है, चले भाई इंतकाल को ले लेते हैं कि मरने का कोई टाइम नहीं है, आपको कुछ हो जाता है और आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है और आपके बच्चे हैं, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने घर मॉर्गेज पे लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर आप घर ले रहे हैं अपनी 30s, 32, 35 में या 40 में, तो कोशिश करें कि उस वक्त घर ले लें। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसको बीमारियां, डायबिटीज हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रोक हो गया, बहुत सारे अल्लाह ताला माफ करे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, फिर आप स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं, मेल है, फीमेल है, इस चीज का भी कंसर्न है। मेल की प्राइस ज्यादा होती है, फीमेल की प्राइस कम होती है, राइट, इट ऑल डिपेंड्स, राइट, कि बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। 2-3 किस्म की लाइफ इंश्योरेंस होती हैं। एक टर्म इंश्योरेंस होती है जिसमें आप हर महीने पे करते रहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपने एक टर्म इंश्योरेंस ली $30 की, 30 ईयर्स की। फॉर एग्जांपल आपने एक टर्म इंश्योरेंस ली 30 ईयर्स की, आपकी एज है 38, तो बाय 68 आपने वो टर्म इंश्योरेंस ली। हो सकता है उसका प्रीमियम 600-700,000 का हो सकता है कि $100 हो, $80 हो, इट ऑल डिपेंड्स। आप चेक कर लीजिएगा कि बहुत सारे इसमें कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर कर रही हैं, और मैं आपको एक रफ नंबर दे रहा हूं। हो सकता है $100 का प्रीमियम हो, आप हर महीने $100 पे कर रहे हैं। उस 30 ईयर्स में, जो टर्म 30 ईयर्स है, उसमें अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ होता है, और फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख की इंश्योरेंस ली है और उसमें सब कुछ आपने सच बोला है, झूठ नहीं बोला, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपके मरने के बाद जो क्लेम है वो बड़ा फास्ट है, और विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स आपका जो एडवाइजर है वो आपको घर पे जो भी आपका बेनिफिशियरी होगा या जो भी आपका बेनिफिशियरी है उसको वो चेक डिलीवर कर देगा, चाहे वो 4 लाख का है, चाहे वो 5 लाख का है, चाहे 6 लाख का है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, स्पेशली सीनियर्स को लाइफ इंश्योरेंस मिलना, ज्यादातर सीनियर्स को लाइफ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशंस अब इतनी स्टेबल नहीं रहती। अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो सीनियर है और अब वो फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो हो सकता है कि उसको एक तो थोड़ी सी अमाउंट की मिले और उसमें वो हार्ट के इश्यू को कंप्लीटली वो कर दें, इन्वॉल्व ना करें। वो उसमें ये मेंशन कर दें कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है जिसमें हार्ट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इसको ऑनर नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका जो अमाउंट है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। हो सकता है वो 30-50,000 हो और आपका प्रीमियम जो है वो बहुत हो सकता है $300-400 महीने का हो। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर फॉर एग्जांपल आप घर आज ले रहे हैं, आपकी एज है 38, तो मॉर्गेज इंश्योरेंस से बेहतर है आप लाइफ इंश्योरेंस ले लें। मॉर्गेज इंश्योरेंस बैंक को प्रोटेक्ट करती है, लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करती है। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने आज सेट की है 30 ईयर्स की, तो वो 30 ईयर्स की वही अमाउंट में चलेगी। मॉर्गेज इंश्योरेंस अगर आपने घर लिया 30 ईयर्स का, तो आप उसके हो सकता है ज्यादा पैसे पे कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी मॉर्गेज की अमाउंट कम होती रहेगी वहां से उसका प्रीमियम इंश्योरेंस का कम होता रहेगा।
मॉर्गेज इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी बैंक होता है, लाइफ इंश्योरेंस में आप अपनी मर्जी के बेनिफिशियरी डाल सकते हैं। तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये आप अपने आप से पूछें। यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे डेली कॉलें आ रही हैं और लोग सीनियर्स जो हैं उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है। बच्चे अगर किसी के हैं तो वो अपनी जॉबों में बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पे कर सके। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। सीनियर्स के मुझे कॉल्स आते हैं 67, 68, 70, 71, 75, राइट। हम स्टक हो चुके हैं, पेंशन इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, राइट, या ओल्ड एज बेनिफिट इतने ज्यादा नहीं मिल रहे, राइट, या उनके एक्सपेंस मंथली के ज्यादा हैं। तो अगेन हमें सबसे पहले तो एक तो अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज ऊपर की तरफ जाए, अगर हमने घर लिया हुआ है, राइट, तो हमने, और अगर हम अपने प्यारों से प्यार करते हैं, अपने वाइफ से, बच्चों से प्यार करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास अगर 5 लाख की मॉर्गेज है फॉर एग्जाम्पल, तो कम से कम हमारे पास 5, 5.5, 6 लाख की कोई ना कोई इंश्योरेंस होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर मेरी जो वाइफ है वो अगर हाउस वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, या वो काम नहीं करती, या खुदा का खास्ता कुछ होता है मुझे और उसको उस सदमे से निकलने में एटलीस्ट साल 1.5 साल लगता है, तो एटलीस्ट घर पेड हो, उसको कम से कम उसकी छत रहे। हलाल है हराम है आई डोंट नो, ठीक है। मॉर्गेज पे अगर आपने घर ले लिया तो लाइफ इंश्योरेंस में फिर लोग बोलते हैं ये हराम है हलाल है, तो भाई घर भी तो आपने खरीदा है। अब एक्सप्लेनेशन घर देते हैं वो तो हमने अपने रहने के लिए लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया, ये आपने, या ये क्या गारंटी है कि भाई आपका इंतकाल आपके घर के पेड होने के बाद होगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कब दुनिया से जाऊंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने घर लिया है और उसकी 25 साल की या 30 साल की एमोर्टाइजेशन है फॉर एग्जांपल, और मैं उसको पे कर रहा हूं, मुझे कुछ हो जाता है डाउन द रोड, राइट, और मेरी वाइफ फॉर एग्जांपल, या मेरे बच्चे छोटे हैं, या मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो बैंक तो उसको किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और फैमिली क्या देगी आपको, कितना सपोर्ट करेगी? हर आदमी बिजी है, कोई थोड़ी है कि कोई आपकी मॉर्गेज हर महीने 4, 5, 6 हजार डॉलर आपको पे करेगा। आपकी फैमिली में भाई है बहन है कि भाई 6 हजार डॉलर मैं तुम्हें हर महीने पे करूंगा, डोंट वरी अबाउट, ऐसा कुछ नहीं होना। तो फैमिलीज को मैंने डिजास्टर्स में जाते हुए देखा है, डिजास्टर्स में। तो इसीलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अर्ली लें, ठीक है। मेडिकल कंडीशंस का कुछ पता नहीं है इंसान को किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन अगर आप घर ले रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर उसकी वो करके करें, ठीक है। अगर आपको कुछ हो गया, लोग डिजास्टर्स में आते हैं, तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस अगर आप घर ले रहे हैं तो एटलीस्ट, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस का फुल प्रोसेस है, इसको अप्रूवल होने में भी बाजों का टाइम लगता है। तो अगर आप ले रहे हैं तो इस पे एक्शन आप राइट अवे लें। कोई भी स्कॉलर है उससे आप कंसल्ट कर लें, लेकिन एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर आपका घर की मॉर्गेज है 5 लाख डॉलर, तो कम से कम आपके पास 5-6 लाख, कम से कम 6 लाख की होनी चाहिए कि 5 लाख आपका घर पेड हो जाए और 1 लाख डॉलर आपकी वाइफ के पास हो। कम से कम वो 1-1.5 साल का, 1-2 साल का बैकअप का ऑप्शन हो जाए। मुझे अपना फीडबैक देंगे, क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।